جو ہے مغفرت ہونے کا ایک بڑا ایک عظیم ایک موقع مل جاتا ہے. اور خاص طور پر ایک مسلمان کی جو روح ہے اگر کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک ہفتے میں متاثر ہوئی ہوتی ہے, چاہے ہم کسی بھی غلطی سے کہیں یا گناہ سے کہیں, لیکن آج اس کے پاس ایک بہترین موقع رہتا ہے جو اپنی روح کو پھر سے پاک کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے اپنی گناہوں کی مغفرت مانگ سکتا ہے. تو اس حوالے سے پورے شہری سری نگر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے کشمیر کے اضلاع ہے, ہر جگہ پہ خاص طور پہ جو بڑی جامع مسجدیں ہے وہاں پہ آج بڑی تعداد میں جو ہے لوگ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو خاص طور پر جو اپنے کام کاج میں بھی بزی رہتے ہیں, لیکن آج وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سبھی کاروبار کو چھوڑ کر, اپنے کام کاج کو چھوڑ کر وہ زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے مسجد شریف میں جو ہے وہ ٹھیک ہے. نور الامین, اگر بڑگام کی بات کریں تو بڑگام میں کس طرح کا جو ماحول ہے جمعے کے روز دیکھنے کو ملتا ہے, کتنی تعداد لوگوں کی نظر آتی ہے, اور کیا کچھ خاص چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے؟ جی سر, اب اگر ہم بات کریں گے جیسے کہ ہمارے کورسپونڈنٹ نے سری نگر سے پہلے ہی کہا کہ جو وادی کشمیر کی جب ہم بات کریں گے تو وادی کشمیر کا اوورآل اگر ہم ماحول دیکھیں گے جمعے کے دن مختلف ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو ہے جمعے کے جو لوازمات ہے وہ صبح سے ہی ان کو پورا کرنے کی جو ہے کوششیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. اور اگر ہم بات کریں گے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کو پالنے کی جو صبح سے ہی پہل ہوتی ہیں, اور پھر نماز جمعہ کے لیے جو ہے مرکزی امام بارگاہوں میں یا مرکزی جامع مسجدوں میں جو ہے لوگ جاتے ہیں, اور تمام کاروبار کو چھوڑ کر, یا مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں گے مارکیٹس کہیں پہ بند بھی ہو جاتے ہیں تو کاروبار کو چھوڑ کر جو ہے مسجدوں کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے جو آج کا اگر ہم بیسک ٹاپک دیکھیں گے کہ مسجد میں کیا کیا چیزیں کرنے کو, کیا چیزیں الاؤڈ کرنے کو ہے, اور کیا دینی باتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی باتوں کے لیے وہاں پر کوئی چھوٹ دی گئی ہے. لیکن اگر ہم روایات کو مد نظر رکھیں گے یا احادیث کو مد نظر رکھیں گے تو ایسی روایات آئی ہے کہ جو مساجد کا ایک الگ ایک جو اندر جانے کا یا مسجد میں وقت گزارنے کے لیے اس کے لیے ایک آداب ہونی چاہیے ایک انسان میں, اور باضابطہ اس میں جو ہے آداب مسجد کئی ایسے احادیث ہے جو ڈیفائن کرتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مساجد جو ہے خاص طور پر جو دنیاوی چیزیں ہیں جو خالی ایک فرد کو نفع دیتی ہو یا ایک فرد سے وابستگی رکھتی ہو, ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے, دنیاوی چیزوں کو وہاں پر ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا ہے. حالانکہ اگر ہم بات کریں گے جو اسلام کے حدود میں رہ کر سماج کے لیے بینیفیشل ہوگا یا سماج اسلام کو کے لیے جو ہے بینیفیشل ہوگا, ان چیزوں کی اگر وہاں پر ذکر کی جائے تو ان کی الاؤنس وہاں پر ہے, اس کو الاؤ کیا گیا ہے احادیث کے ذریعے ہمیں وہ پتہ چلتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں گے ایسے بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ مساجد میں کھانا پینا کیا جائز ہے کہ نہیں ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں گے ایسے روایات ہے یا بخاری شریف میں احادیث ہے یا مختلف جو ہماری کتابیں ہیں ان میں احادیث یہ درج ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مساجد میں کھانا پینا ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایک طور طریقہ ہے جس طور طریقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نور, مفتی صاحب کا رخ کرتے ہیں. مفتی صاحب, مساجد کو پہلے سے ہی اس سے پہلے ٹریننگ سینٹر, ایجوکیشن سینٹر, ریہیب سینٹر, میٹنگ ہال, نکاح سینٹر سے لے کر تمام تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مساجد کو صرف خاص طور پر نماز کی ادائیگی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. کیا وجوہات آپ اس کے پیچھے مانتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے تو مسجد نبوی جو تھا وہ تھی, وہ سیکریٹریٹ بھی کی حیثیت بھی رکھتی تھی, اور وہاں پہ مسائل بھی حل ہو جاتے تھے لوگوں کے, بلکہ قضا اور جو فتویٰ کا سلسلہ بھی وہیں سے ہوتا تھا. لیکن حالات بدل گئے ہیں, لیکن اتنے بھی نہیں بدل گئے ہیں کہ آج بھی مساجد کے اندر درسگاہیں موجود ہیں, اور ائمہ مساجد جو ہے وہ اپنا رول بھی نبھاتے ہیں بڑی خوبی کے ساتھ. بہت سارے اچھے خطیب ہیں جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور تزکیہ نفس کے ذریعے تزکیہ نفس کرتے ہیں, اور ان کو ان کی اصلاحی معاشرے میں اپنا ایک رول ادا کرتے ہیں. اور اصل میں مسجد دو کمپوننٹس کا نام ہے, ایک یہ ہے کہ تزکیہ نفس, اور ایک دوسری کہ خدا کے سامنے مکمل طور پہ سرنڈرنس,
اللہ کے سامنے جھکنا، اور اسی لیے اس کا مسجد کا نام دیا تاکہ وہاں سجود ہو سکے. اور سجود کا لفظی معنی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کو ایک معنی اللہ کے ہی کی ذات پہ توکل کرنا. اور قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر دیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کا آج کل کے دور میں ایک اہم رول ہے. اس رول سے کسی بھی صورت میں ہم غافل نہیں ہو سکتے ہیں. بلکہ اگر میں دوبارہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک مولوی مت بنیے. میں اپنے یہاں علماء سے کہنا چاہتا ہوں منافرت مت پھیلائیے، اور مسجد منافرت کے لیے نہیں ہے. مسجد کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ لوگوں میں اتحاد قائم ہو، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں اور جوڑیں، اور مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر مساجد میں آ کے لوگوں کی خدمت کریں. جی بالکل. میر عمر، جاننا چاہیں گے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد کیا کچھ جو تفصیلات ہیں وہ دی جاتی ہیں، کس طرح دینی تعلیمات لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، اور کیا کچھ جو ذکر و اذکار میں سننے کو ملتا ہے، کس طرح جو مولوی ہیں اور امام ہیں وہاں پر کیا کچھ تعلیمات لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کے دور میں بھی؟ دیکھیے بالکل، اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو جب بھی ہمارے جو امام صاحبان ہیں، جو خطیب ہے، جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو خاص طور پر دینی دائرے میں رہ کے عوام سے ہمیشہ اسی بات کی جو ہے ان کی اصلاح کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے پیار محبت اور ایک جو بھائی چارہ ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ہمارے مذہب میں ایک دوسرے کی محبت کے حوالے سے جو ایک لطافت ہے، جو ایک عزت ہے، وہ کیسے ایک انسان حاصل کر سکتا ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کس طرح سے اقدامات اٹھا سکتا ہے. ایک ہمیشہ ہم نے جموں کشمیر کے حوالے سے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کشمیر کا نام لیتے ہیں تو ہم اس تصویر کے ساتھ بھائی چارے کی ایک صورت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ کشمیر کو اس حد تک مانا جاتا ہے کہ جو ایک ہم آہنگی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا جذبہ ہے، اس میں ہماری مساجد نے ایک بہت بڑا دینی اعتبار سے ایک بڑا رول ادا کیا ہے. اور ہمارے جو یہاں پہ خطیب حضرات ہیں یا امام صاحبان ہیں، انہوں نے بڑا ایک کلیدی رول اس میں اپنایا ہے. اس کی وجہ سے آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں بھی جو ایک حب الوطنی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ قومیت کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، وہ آج بھی برقرار ہے. اور ہمیشہ ایک صحیح راستے پہ چلنے کا ہر وقت جو ہمارے امام صاحبان ہیں یا خطیب صاحبان ہیں، وہ ہمیشہ درس یہی دیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم سماج کے لیے ایک ایسے شخص بن سکتے ہیں جو نہ صرف اپنی اصلاح کر پائے بلکہ جو ان کے گرد نواح میں ہے وہاں پہ بھی ایک بہتر نظام کس طرح سے وہ جو ہے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز رہتے ہیں، اور ان سبھی کی اگر ہم عکاسی کریں تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، جو انہوں نے کیا، جو ہم تک ایک سنت کے طور پر جو ہے میسج پہنچی ہے. اور انہی سنتوں کے ذریعے جو ہے ہماری پوری قوم کو، چاہے جہاں پہ بھی آج کے وقت میں جو مسلمان ہیں، ان تک یہی میسج پہنچائی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور وہی ایک حکمت عملی، وہی رائے عمل اگر ہم اپنی زندگی میں بھی چلائیں گے تو ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ کوشش یہی کی جاتی ہے، چاہے ہم کسی بھی مذہب کی بات کریں یا کسی بھی قوم کی بات کریں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر جو سماجی برائیاں ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اگر ہم ماڈرن ورلڈ کی بات کریں، اس وقت جو کنسٹرکٹیو جو فورسز ہے کہیں نہ کہیں پہ اس حد تک پہنچ چکی ہے جہاں پہ ڈسٹرکٹیو فورسز جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ چکی ہے. لیکن اس میں ایک بڑا جو ایک فرض عین اور جو رول جو ہے یہاں کی مساجد نے بھی جو ہے ادا کیا ہے، جس میں لگاتار یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ سماج کو ایک بہتر سماج بنایا جائے. اور جس طرح سے کچھ ہمارے جو جوان ہیں یا کچھ لوگ جو ہے سماجی برائیوں میں پھنسے ہوئے، ان کو کس طرح سے اس میں سے باہر نکالا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے خطبہ حضرات جو ہے وہ اپنے خطبے میں ان سبھی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. خاص طور پر دینی دائرے کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان سبھی چیزوں کو کس طرح سے ایک انسان کو
जो एक आगाह किया है कि वो किस तरह से इन बुराइयों से बच सकते हैं, किस तरह से वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर एक मजबूत समाज को, एक बेहतर समाज को बना सकते हैं, जहाँ पे बड़े बुजुर्गों की इज्जत है, ख्वातीन की इज्जत है, बच्चों को प्यार देना है और एक नेक तरीके से, एक हलाल तरीके से अपने रिज़्क को हासिल करना है, समाज में किस तरह से एक बेहतर निज़ाम को कंस्ट्रक्ट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नमाज अदा करने के बाद जो है अक्सर हमें बात जो है हमारे खतीब हजरात और जो इमाम साहिबान है उनके जो है अल्फाज से जाहिर होता हुआ नजर आता है। जी बेशक, ठीक है मीर। मुफ्ती साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि मस्जिद में लोगों की तालीम, बच्चों और बड़ों की इस्लाह और बहुत से मसाइल और तनाज़ात का हल किया जाता है, लेकिन इन तनाज़ात को हल करने में जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनका कितना बड़ा और अहम रोल है, और तमाम जो जम्मू कश्मीर में मस्जिदें मौजूद हैं उनके इमामों को आप क्या कुछ हिदायत इस हवाले से करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब भी किसी जगह वो तशरीफ लेंगे सबसे पहले एहतमाम उन्होंने मस्जिद का किया, और बल्कि वो मस्जिद बनाने, बल्कि जब वो हिजरत के बाद आगे हिजरत करके मदीना आए तो उस वक्त भी उनका यही एक सबसे पहला काम जो था वो मस्जिद की तामीर उन्होंने अपने जिम्मे ले ली। तो इस तरीके से क्योंकि मस्जिद की इफादियत और अहमियत को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस वक्त हमारे बच्चे जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूँ, हमारे बच्चे यहाँ पे मनशियात के शिकार हैं, ड्रग्स के शिकार हैं, शराब नोशी करते हैं और घर टूट रहे हैं, फैमिली सेग्रीगेट होती है, और मेरे पास तकरीबन हर रोज कोई ना कोई मसला ऐसा पेश आता है जो ड्रग्स से ताल्लुक रखता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस से आता है। बेरोजगारी भी यहाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। डिप्रेशन के शिकार यहाँ के नौजवान हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे जो भी अवामिल है, लेकिन इसका तदारुक जो है वो सिर्फ मस्जिद की मीनारों से ही मुमकिन है, क्योंकि इमाम और खतीब का जो असर होता है वो दिल पे जाके लगता है, वो दिल पे पड़ता है, वो इंसान को इस जानिब, इस्लाम की जानिब रागिब करता है, अखलाक की जानिब, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद है, जो मकसदियत जो है वो उसमें सबसे पहले आपने ये फरमाया, मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक दुरुस्त करने के लिए आया हूँ इस दुनिया में। तो उस वक्त आपने सबसे पहले 40 साल में सिर्फ लोग ये मानने लगे कि ये सादिकुल अमीन है, ये जो कुछ कहते हैं उस पर यकीन उन्होंने कर लिया और लोग उनको मानने लगे, इज्जत करने लगे और आबिरो और विकार देने लगे, और यही सिलसिला जारी रहा जब उसके बाद नबूवत आ गई। और नबूवत के बाद जो सबसे पहले जो काम था वो यही था कि कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसूल अन रइयती, हर एक आदमी जो है वो अपने रेवड़ का जिम्मेदार है, और इमाम अपने मुक्तदियों का जिम्मेदार होता है, अपने मोहल्ले का जिम्मेदार होता है। और मैंने देखा कि कोविड में जिस तरीके से, कोविड-19 में, पैंडेमिक में जिस तरीके से हमारे अइम्मा ने यहाँ काम किया, वो बिल्कुल एक मिसाली किरदार उन्होंने निभाया। और आज भी हम यही उनसे तवक्को रखते हैं कि वो लोगों के हर जुमे को कम से कम अखलाकियात को मौजू बना के लोगों को इस्लाम और दीन और अखलाक के करीब करेंगे। जी बेशक। नूरुल अमीन, किस तरह के मसाइल लेकर खासतौर पर अगर नौजवानों की बात करें तो मसाजिद में पहुंच रहे हैं, और कितना उन्हें उसका हल मिलता है और कितना वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं आज की डेट में? जी सदफ, अगर हम बात करेंगे जो रब कायनात की भेजी हुई किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम, तो कुरान करीम में हर किसी मर्ज का, हर किसी इशू का सलूशन है। और जब अगर हम आज के दौर की बात करेंगे या मॉडर्न एरा की बात करेंगे, खास तौर पर जो मसाइल नौजवानों के साथ रिलेटेड है, उसमें अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे, या माँ बाप के साथ कैसे सलूक किया जाए, सोसाइटी में कैसे उठना बैठना होना चाहिए नौजवान का, तो ऐसे मसाइल जो
जो है इन मसाइल पे जो है कुरान और अहदीस को मद्देनजर रखते हुए जो है जो खतीब जुमा है वो नजर डालता है, वो समझाने की कोशिश करता है कि कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या रास्ता उन्होंने दिखाया, कि अगर ऐसी चीजें, अगर ऐसे समाज में बिदात हो तो कैसे हम उन चीजों को जो है टैकल कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को जो है समाज से खत्म किया जा सकता है। समाजी बुराइयों पे अगर हम बात करेंगे तो समाजी बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब में जो जब वो गए तो अरब में उस वक्त अगर हम उस टाइम की बात करेंगे तो जहालत बहुत ज्यादा थी, तो बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। तो उन्होंने पहले जो है समाजी मसाइल पे ही काम शुरू किया और बेटियों को जो है इस्लाम में सबसे बड़ी इज्जत दी। और ओवरऑल अगर हम पूरे माशरे की बात करेंगे, हर किसी मजहब की बात करेंगे तो बेटियों को एक बड़ा मकाम दिया जाता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो कुरान करीम और अहादीस की रोशनी में जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, कैसे हम समाजी बुराइयों से लड़ सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम नौजवानों को एक सीधी राह पे ला सकते हैं, तो उन चीजों का जिक्र यहाँ पे किया जाता है। खासतौर पर जो आज के समाज से अगर हम बात करेंगे, जो इस वक्त जो पीक लेवल पे टॉपिक्स है, खासतौर पर ड्रग अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे या बहरारेवी की बात करेंगे, तो उन चीजों पे जो है हदीस की नजर में जो है उन चीजों का अदाला ढूंढने की कोशिश की जाती है और नौजवानों को जो है खतीब जुमा या इमाम साहब या मौलवी साहबान जो है वो कोशिश करते हैं कि नौजवानों में ये जो बुरी आदत लगी हुई है तो इनसे उनको जो है वो राहत मिले और ये इस्लाम के ट्रैक पे चले, एक सीधी राह पे चले जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाई है। जी बेशक। मेरे बार क्या लगता है मौजूदा दौर में लोग कितना मस्जिद की अहमियत से जुड़े हुए हैं और कितना फॉलो करने की कोशिश करते हैं, किस तरह उनका जो रुख है मस्जिदों में वो देखा जाता है। जाहिर है कि जुमे के रोज ज्यादा तादाद देखने को मिलती है, लेकिन अगर ऑल ओवर भी अगर बात की जाए तो किस तरह का माहौल आप श्रीनगर में देख रहे हैं? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्लेस है और जब नमाज का वक्त होता है, चाहे हम किसी भी दिन की बात करें या किसी भी वक्त की बात करें, लोगों की अच्छी खासी तादाद मसाजिद का रुख करते हैं और एक फर्ज ऐन है एक मुसलमान के लिए कि वो अपने नमाज को अपने वक्त पे, अपने मुकर्रर वक्त पे, उसके बिल्कुल हदूद में जो है जमात के साथ मसाजिद शरीफ में जो है उसको अदा करें। उस तरह की तस्वीरें आज की डेट में भी हैं, क्योंकि मैं इसको एक अलग तरीके से भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप देखेंगे कि हम किसी भी टूरिस्ट से यहाँ पे बात करते हैं तो वो हमेशा यही कहता है कि जो कश्मीर की जो हॉस्पिटैलिटी है वो दुनिया में किसी भी जगह पे वो महसूस नहीं कर पाते हैं। और वो जो मोहब्बत का जो जज्बा है वो तरबियत मसाजिद से ही आती है, वो इज्जत और एहतराम एक दूसरे को करने का वो मसाजिद शरीफ से ही आती है। और जब हम अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं तो हमें वो एक नदामत आती है, हमें वो एक कुव्वत पैदा होती है जिसमें हम एक दूसरे की इज्जत करने का एक सलीका जो है वो सीख लेते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में अगर हम किसी भी शख्स से बात करते हैं कश्मीर के हवाले से तो हमें हमेशा तारीफें ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन इन तारीफों के पीछे जो एक बेसिक जरिया है वो हमारी मसाजिद शरीफ है, वो हमारे इमाम साहिबान है, जो खतीब हजरात है, जो अपने दर्स से, जो अपनी आगाही से हमारी इस्लाह करते हैं। और वही इस्लाह होने की वजह से हमारे जो कैरेक्टर्स है उसमें वो साफ तौर पर झलकती है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। और उसका एक बेसिक, जिस तरह से आपने कहा कि कितनी तादाद, तो तादाद अगर हम जब पूरे कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के किसी भी हिस्से में जब भी कोई शख्स बाहर से आता है तो वो कश्मीर की तारीफ ही करता है, कश्मीरियों के इस तौर तरीके का, उनके कैरेक्टर का, उनके बिहेवियर की हमेशा तारीफ ही करता है। तो यानी कि जो भी यहाँ पे रहता है वो हमेशा कोशिश यही करता है कि वो मस्जिद का रुख करे, वो वहाँ पे नमाज अदा करे, अल्लाह ताला के सामने अपनी गुनाहों की मगफिरत करे और उसको एक सही कैरेक्टर जो है अल्लाह ताला उसको बख्शे। तो उसी सही कैरेक्टर की जो अक्कासी है पूरा वर्ल्ड जो है तारीफों के जरिए कश्मीरियों के करता है। तो इस हवाले से जितने भी हमारे यहाँ पे मुसलमान हैं, हाँ जरूर इस बात में कोई शक नहीं है कि कई सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं इस वक्त करंट डेट में जिसकी अलग अलग वजूहात है, उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये शक, इसमें कोई शक नहीं है कि कई सारे हमारे नौजवान हैं जो अभी समाजी बुराइयों में जो है मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन लगातार मसाजिद के जरिए, लाउड स्पीकर्स के जरिए, इमाम साहिबान या जो खतीब हजरात हैं उनके दर्स के जरिए उन सभी बुराइयों को जो है खत्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं।
اور جس طرح سے آج جمعۃ المبارک ہے، یہ ایک عظیم دن رہتا ہے، نہ کہ ریلیجس لیول پہ بلکہ سوشل لیول پہ بھی، ایک کمیونٹی لیول پہ بھی. اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جس خوبصورت کشمیر کی ہمارے ہمیشہ ہر جگہ پہ پوری دنیا میں تعریف کی جا رہی ہے، جہاں پہ بھی کچھ لوگ جو اس بیماری سے، اس وبا سے متاثر ہے، ان کو بھی اس متاثرہ حالت سے باہر نکالا جائے اور ایک بہتر نظام کو بنایا جائے. جی بے شک. مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی موجودہ وقت میں ہم کس طرح مسجد کی اہمیت کو دین کے لحاظ سے بڑھا سکتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے آپ کو یہی بتایا کہ مسجد کی اہمیت جو ہے وہ اجتماعیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے. لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اور کشمیر میں خصوصاً جیسا کہ میرے عزیز نے فرمایا ابھی کہ یہاں پہ پریڈومیننٹلی جو ہے کشمیر کی اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور الحمدللہ یہاں لوگ مساجد کا رخ اختیار کرتے ہیں. اور آج کل کے اس موجودہ دور میں مساجد کا رول پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ جو حالات پیدا ہو گئے پچھلے کئی سالوں سے جو دیکھنے کو آیا، ڈرگز کی وجہ سے، منشیات کی وجہ سے، مال ڈیگریڈیشن کے حوالے سے، اور لوگوں میں اقتصادی بحران جو ہے، اس میں مساجد کا ایک اہم رول ہے. اور مساجد کا اہم رول نبھانے میں امام صاحب کا کردار بہت ہی اہم اور بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش بھی رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ مذہبی منافرت کے بجائے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے. مسلک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اصل میں جس کا منبع، جس کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور قرآن کریم کا بہتر 80% جو ہے وہ درس دیتا ہے، وہ جو تعلیم دیتا ہے اخلاقیات کی. اگر اخلاق کسی معاشرے میں اچھے ہوں تو معاشرہ خود بخود اچھا بن کے سامنے آئے گا اور برائیاں ختم ہو جائے گی. اور مسجد اسی اجتماعیت کا نام ہے، اور اس مرکز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ ہم اس کی خود آبیاری نہ کریں. جی بالکل. میر عمر، مسجد کو مسافروں کی قیامگاہ کے طور پر بھی خاص طور پر اسلام میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بے سہارا لوگوں کی جو مدد ہے وہ کرنے کی بھی پوری طرح سے کوشش کی جاتی ہے. لیکن یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ انتظامیہ کا اس میں کتنا رول ہے اور کتنی مدد کرنے کی جو کوشش ہے انتظامیہ مساجد پر وہ کرتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم مسجد کے نظام کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک کمیونٹی کے حساب سے چلتی ہے. یعنی کہ جو محلہ ہے، جو علاقہ ہے، وہاں پہ جب کسی مسجد شریف کو تعمیر کیا جاتا ہے تو خاص طور پر جو اس کا نقش و نظام جو ہے وہ اسی محلے یا اسی علاقے پہ ڈپینڈ رہتا ہے، اور جو اس محلے کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو تعمیر کرتے ہیں اپنے خرچے سے، یا وہ چندے کے ذریعے سے بھی جو ہے پیسہ جمع کرتے ہیں، اور اس حساب سے اس مسجد شریف کی تعمیر کرتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس اللہ کے گھر کو بنانے کی جو ایک تعمیر کی جو تصویر ہے وہ عوام اپنے جو ہے کئی اس کی ذمہ داریاں لیتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اس کو وہاں پہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مساجد کا ایک اور رول بھی ہے جو ہمارے سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے. مساجد شریف کے ذریعے سے کچھ کمیٹیز جو ہے تشکیل دی جاتی ہیں، جہاں پہ ہم بیت المال کی بات کرتے ہیں یا فلاح بہبودی جو ہماری جو کمیٹیاں ہیں وہ تشکیل دی جاتی ہیں. اس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اس پرٹیکولر ایریا میں جو لوگ متاثر ہیں ان کو جو ہے مدد کی جائے، جو ان کی ضروریات زندگی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ جو کنٹریبیوٹ جو ہے مساجد کی طرف سے جو پیسہ جمع کیا جاتا ہے اس پیسے کے ذریعے جو ہے ان مسکین، ان غریبوں کی جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی مدد کی جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو کشمیر کی صورتحال پریویس ڈیٹس میں رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ جو ہے سوشل لیول پہ متاثر رہے ہیں، اور کرنٹ ڈیٹ میں بھی اس طرح کی جو ابھی بہتر صورتحال ہمیں انکم کے حوالے سے جو ہے نہیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور کئی ساری ایسی خواتین ہیں جن کے جو ہے جو روزگار کمانے والے جو لوگ ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، اور کوشش یہی کی جاتی ہے سماجی لیول پہ، محلے کی لیول پہ
कम्युनिटी के लेवल पे, इलाके के लेवल पे, कि उन सभी लोगों की मदद की जाए और उसमें मस्जिद का एक बड़ा रोल जो है वो हमें होते हुए देखने को मिलता है कि उन गरीबों के लिए पैसा जमा किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। और जब भी किसी भी शख्स की जो मदद की जाती है वो बिल्कुल राज रहता है, उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं रहता है। हाँ, ये जरूर है कि कम्युनिटी लेवल पे या कमेटी लेवल पे खासतौर पर कहीं ना कहीं पे ये आगाही होती है कि किसको कितना पैसा दिया गया है, क्योंकि इस्लामिक सिस्टम में आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी एक चीज जो है हमें अपने जो इस्लाम में देखने को मिलती है। तो कोशिश यही की जाती है कम्युनिटी लेवल पे किस तरह से जो उस कम्युनिटी के लोग जो है वो सभी बेहतर जिंदगी बसर करें, और उसमें अगर कोई भी ऐसा शख्स है, कोई भी ऐसा घर है जिनके पास रोजगार के वसाइल उस तरह के नहीं है, जिनकी जरूरियात कुछ ज्यादा रहती हैं, उनकी जरूरियात को कैसे पूरा किया जा सकता है, उसमें मसाजिद की तरफ से जो ये कमिटीज बनाई जाती हैं उसका एक बड़ा कलीदी रोल रहता है। हालांकि हम सिर्फ ये महदूद एक इलाके तक ही नहीं रहता है, कोशिश ये भी की जाती है कि अगर कोई इलाका अपनी जगह पे बर्जस्त है, इनकम्स हर एक मकान के पास ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि जो इलाके से बाहर कुछ लोग जो मुसाफिर होते हैं, जिनकी जरूरत होती है, जो मस्जिद का रुख करते हैं, मस्जिद से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश ये भी की जाती है कि उन लोगों तक भी जो है मदद पहुंचाई जाए। इसकी कई सारी जो मिसालें हैं हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम करंट डेट में भी देखें, आपको याद होगा कि जब अचानक से कुछ वक्त पहले यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, तो यहाँ की आवाम ने ना सिर्फ जो अपने घरों के दरवाजे हैं टूरिस्ट के लिए खोले थे, बल्कि मसाजिद का भी जो दरवाजा जो है खुला गया था, वहाँ पे उन टूरिस्ट को रखा गया था, वहाँ पे उनके रहने खाने पीने का उस रात को पूरा इंतजाम किया गया था, उनको हर तरह से खदमत पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एक इस्लामिक निज़ाम में जो एक सिस्टम बनाया गया है, जो एक मैकेनिज्म बनाया गया है, उसमें हमेशा एक चीज हमें जरूर देखने को मिलती है कि वो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बारे में एक सही ख्वाहिश रखना, उसके साथ मोहब्बत का जज्बा रखना, उसके साथ प्यार का जज्बा रखना, और उसकी जब एक अक्कासी करते हैं, जब हम उसका एक मरकज देखते हैं, तो वो हमारी यही मसाजिद शरीफ नजर आती है, वही इमाम साहिबान नजर आते हैं, वही खतीब हजरात नजर आते हैं, जिनकी जबान से अल्फाज से हमारी रूह मुअत्तर होती है, हमारी इस्लाह होती है। और अगर हम इस मरकज की बात करें जहां से ये आवाज बुलंद होती है, तो वो यही मस्जिद है। तो हमारी जिंदगी में मस्जिद एक अहम रोल अदा करता है। एक मुसलमान के लिए मस्जिद के सिवा उसके पास कोई ऐसा आसरा नहीं है जहां से वो अल्लाह ताला के सामने उसकी बारगाह में सर झुकाए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, अपने समाज को बेहतर बनाए, और वही ख्वाहिश बाकी लोगों के लिए भी रखे, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मिलत का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी सिर्फ से वो जुड़ा हुआ हो। कोशिश यही रहती है कि मसाजिद से हमेशा लोगों के लिए रफाकत का निज़ाम बनाया जाए। जी बिल्कुल। नूरुल अमील, जिस तरह अमीर ने समझाया है, और ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो मुसाफिर हैं और बेसहारा लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए मस्जिद कितनी अहम है। बडगाम की किन मस्जिदों में आपको इस तरह का माहौल देखने को मिलता है? और जी सदफ, अगर हम बात करेंगे, जैसे कि इस्लाम का दर्स यही है कि सखावत करना, यानी कि अगर हमारे समाज में कोई मुसाफिर हो या कोई जरूरतमंद हो जिसके पास कुछ ना हो, तो उसकी मुआवनत करना, चाहे माली मुआवनत हो या हम चीजों के तौर पर उसकी मुआवनत करते हैं, तो इस्लाम हमें यही सिखाता है। और अगर हम बात करेंगे जो मुसाफिरों के लिए मस्जिदों में जो अलग एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, तो हर किसी मस्जिद में, खासतौर पर जामिया मस्जिद में आपको देखने को मिलेगा कि हर किसी मस्जिद के साथ में जो है कि मुसाफिर खाना होता है, यानी कि ये एक ऐसी जगह होती है मस्जिद की जहाँ पे कोई भी मुसाफिर आ सकता है, ठहर सकता है और वहाँ पर रुक सकता है, और वहाँ पर खाने पीने की चीजें उसको फराहम की जाती हैं। और अगर हम फिर सखावत की बात करेंगे, जैसे हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजू जो हमारे चौथे खलीफा है, तो उनको सबसे ज्यादा सखी माना जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्ज दिया है सखावत का, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता था, या अगर कोई गरीब होता था समाज में, तो उनकी मुआवनत कैसे करते थे कि वो उनको पता भी नहीं चलता था कि हमारे घर खाना पहुंच चुका है और किसने पहुंचाया है। और अगर हम देखेंगे, जब हम इस्लाम की तवारीख को पढ़ते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने उस तरीके से इंसानियत को जो है वो
उन्होंने इंसानियत को उस तरीके से खिदमत की, या उन्होंने उन गरीबों की उस तरीके से खिदमत की कि वो फिर इस्लाम में मुस्लिम कन्वर्ट हुए। तो ऐसे हमारे पास कई ऐसे अहादीस है, ऐसे कई रवायात हैं या वाक़ात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे इस्लाम हमें सिखाता है कि जो हमारे इर्द गिर्द में, खासतौर पर हम समाज की बात करेंगे, इर्द गिर्द में जो हमारे गरीब गुरबात लोग हैं या जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है या किसी चीज की उनको दरकार होती है, जरूरत होती है, तो इस्लाम ने हमें एक फुल फ्लेज्ड सिस्टम दिया है, समझाया है कि इंसानियत और मुआवनत करना ही जो है इस्लाम की पैरोकारी करना है। और ये चीजें जो है हमें इस्लाम सिखाता है। ठीक है नूर, मुफ्ती साहब का रुख कर लेते हैं। ठीक है नूर, मुफ्ती साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मौजूदा वक्त में आप क्या कमी महसूस करते हैं, जो नौजवान है, जो नौजवान हैं आजकल के, वो मसाजिद की अहमियत और समाजी फलाह बहबूद से दूर होते जा रहे हैं, और क्यों जरूरी है उन्हें इस्लाम से जुड़ना? देखिए, मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इंसान के लिए जो दानिशगाह है वो वालिदा और वालिद की तरबियत है, और यहाँ से शुरू होती है, उसकी ज़िंदगी का आगाज़ यहीं से शुरू होता है। लिहाजा सबसे पहले अहम बात यह है कि वालिदैन अपनी जिम्मेवारियों को समझे और वालिदा भी अपनी जिम्मेवारियों को समझे, और बेहतर तरी माशरे की तख्लीक में उनका रोल बहुत ही नुमाया है, अहम है। और उसके बाद मसाजिद में वालिदैन अगर अपने बच्चों को ले लें, अपने साथ ले लें, तो वहाँ से अखलाकियात का उन्हें दर्स मिलता है। और यहाँ घर में तो वो फरमान चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अखलाकियात से मुज़य्यन होने का एक ज़रिया मुहैया होता है। लिहाजा हमें इस बार मस्जिद की अहमियत को हमें किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर मस्जिद की अहमियत नहीं होती तो कुरूल उला के लोग मसाजिद में ही वक्त ज़्यादा नहीं गुजारते, बल्कि उन्होंने मस्जिद को तरजीह बुनियादों में अपने घरों के मुकाबले उनको तरजीह दे दी, और क्योंकि वहाँ पे उन्हें अखलाकियात का सबक मिलता था, दर्स मिलता था। और हमारे नौजवान जो है इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि वो टेलीविज़न के इन्फ्लुएंस में है और ग्लोबल विलेज के इन्फ्लुएंस में है। और लिहाजा मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपकी इस चैनल की वसातत से कि वहाँ उससे वो बाहर निकलें और कुरान पढ़ें, कुरान को दस्तूर समझ के। कुरान सिर्फ दस्तूर उमम ही नहीं बल्कि तहजीब की भी अक्कासी और रहनुमाई करता है। लिहाजा कुरान समझिए, कुरान पढ़िए और कुरान को दूसरों तक पहुँचाइए, ये आपके लिए ज़रिए निजात है। जी बिल्कुल। मेरा मन जिस तरह से मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया है, आपसे भी जानना चाहेंगे जो भी वालिदैन हैं उनकी क्या अहम फ़र्ज हैं और बच्चों को लेकर, और किस तरह की जो तरबियत है वो करना ज़रूरी है, और क्या कुछ ख़ास बातों पर जोर देना ज़रूरी है जो वो शुरू से ही इसी तरह अपने दीन को और इस्लाम को और मस्जिद की नमाज की अदायगी को साथ लेकर चल सकें। बिल्कुल, अगर हम देखें तो वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है जब एक बच्चे का जो नशो नुमा है, जो उसकी ज़हनियत है, जो उसकी सोच है, उसको एक बेहतर तरीके से ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वालिदैन की ही होती है। क्योंकि वो जिस तरह से अपने बच्चे की तरबियत करेंगे, जिस तरह से उसकी इस्लाह करेंगे, जिस तरह से उसकी सोच रखेंगे, वो उसी तरह से आने वाले वक्त में समाज के तई अपने आप को देखेगा। ज़रूरत ये भी है ना सिर्फ हमें बच्चों की तरबियत एक सही तरीके से करनी चाहिए, बल्कि साथ साथ जो एक दूसरे के साथ, यानी कि पेरेंट्स का जो एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, तौर तरीका है, उसका भी कहीं ना कहीं पे जो इन्फ्लुएंस है उस बच्चे की सोच पे पड़ता है, उसके जहन पे पड़ता है, उसके नशोनुमा पे पड़ता है। एक डिस्टर्ब फैमिली का इफेक्ट डेफिनेटली उसके जो बच्चे होते हैं उन पे पड़ता है। तो जरूरत इस बात की है कि ना सिर्फ हम बच्चों की तरबियत को एक अपना एक अवलैन जो एक फर्ज है वो समझें, बल्कि उससे साथ साथ जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है, जो एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका है, जो इज्जत और एहतराम का एक सिस्टम है, जो एक खुश उसलूबी से एक दूसरे का देखने का तरीका है, उसको भी घर में जो है आप बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप किसी बदबूदार जगह पे एक गुलाब को रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे उस गुलाब की महक पे भी उसका असर पड़ेगा। तो जरूरत है पहले उस निज़ाम को बेहतर बनाने की, और अगर आप उस बेहतर निज़ाम में किसी भी चीज को रखते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी मुअत्तर हो जाती है। तो ये एक इस्लामिक सिस्टम की अगर हम बात करें, हमेशा कोशिश यही की जाती है कि घर से अपने निज़ाम को बेहतर बनाया जाए,
जिससे जब उस घर से कोई फर्द बाहर निकले तो वो उस घर के अंदर के निजाम की अक्कासी बाहर वो कर पाए। और जब एक दूसरा इंसान उस इंसान की कैरेक्टर को देखता है, उसके उठने बैठने को देखता है, उसके तौर तरीके को देखता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो एक अच्छा इंसान है तो उसकी अच्छाइयाँ बाहर झलकेंगी और उससे वो दूसरा जो सामने उसका शख्स होगा वो भी मुतासिर होगा। तो जो वालिदैन है उनका एक सबसे बड़ा रोल जो है समाज को बेहतर बनाने का, उनके बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने का उनके लिए एक अवलीन फर्ज बनता है। और साथ साथ ये जिस तरह से मैंने आपके साथ ये फैक्टर शेयर किया कि वालिदैन एक दूसरे के साथ भी एक खुश उसलूबी का तरीका हमेशा इस्तेमाल करे, ताकि जब उनका बच्चा अपने वालिदैन की गुफ्तगू को देखे, उनके तौर तरीके को देखे, उसके जहन में भी उसी तरह की छाप पैदा हो और वो यही कोशिश जिंदगी में करे कि वो अपने वालिदैन की तरह एक खूबसूरत अमल को अपनी जिंदगी में अपनाए। जी जी बिल्कुल। नूरुल अमीन, बेशक है कि मसाजिदों का रुख करना अहम है और नमाज की अदायगी करने पर भी अहमियत पर जोर दिया गया है, लेकिन ऐसे में किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी के चलते या किसी भी रीज़न के चलते अगर लोग मसाजिद का रुख नहीं कर पाते हैं तो कितना फ़र्क है दीनी तालीमात के मुताबिक मसाजिद में नमाज अदा करने का और घर पर नमाज की अदायगी का? जी सर, अगर हम देखेंगे ऐसे तो अगर देखा जाए कि जो इस्लाम है, इस्लाम का जो अगर हम अहादीस शरीफ के नजर से देखेंगे, अद्दीन युस्र एक ऐसा अहादीस है जिसमें कहा जाता है कि दीन आसान है, यानी कि आपको इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता है। जब आप बीमार होंगे या कोई ऐसा उज़्र होगा कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते हैं तो आपको वहां पर छूट है, लेकिन फिर उसके लिए कुछ दूसरे शराइत है जो आपको पालने हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर मसाजिद की अगर अजान होती है फिर नमाज अदा नहीं करता है, जानबूझकर ये चीज जो है वो ठुकराता है, तो उसके लिए फरमान है अगर मुसलसल 3 जुम्मे है, अगर एक इंसान जानबूझकर 3 जुम्मे रद्द करता है यानी नमाज अदा नहीं करेगा तो उनको तैयबा नए से अदा करना है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो मसाजिद का रुख करना है ये एक इंसान में ना खाली इबादत की तरफ बल्कि इसकी समाजी जिंदगी को भी संवारता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस्लाम में हर कोई ऐसी चीज जो है वो जस्टिफाई करके है, हर किसी चीज का सोल्यूशन है, हर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और वो कुरान करीम को पढ़कर आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज का क्या सोल्यूशन है। और अगर हम इस्लाम को या जो हमारा दीन है इसको हम अपनी जिंदगी में लाएंगे तो इससे हमारी जो शख्सियत है एक तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। और अगर कोई इंसान जो है ऐसी चीजें तर्क करता है जानबूझकर तो उसको बिलाखिर जो है क़यामत के रोज जजमेंट के दिन जो है उस दिन उनको जवाब वहां पर देना है, और हर किसी सवाब और गुनाह का हमें वहां पर जवाब देना है। अपने अमाल लेकर जब हम वहां पर जाएंगे तो उन अमाल के बुनियाद पे जो है डिसाइड होगा कि कौन सी जन्नत दी जाएगी कि जहन्नम में नौजुबिल्लाह हम जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस्लाम है या जो हमारा मजहब है इस पे चलना और इसकी पैरवी करना, इसके राय अमल पे चलना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते चलना ये एक मुसलमान के लिए जरूरी है, और यही वो रास्ता है जो एक इंसान को निजात दे सकता है। और इस्लाम में ये भी है कि अगर किसी को कोई उज़्र है यानी अगर कोई बीमार है या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है तो वो नमाज की अदायगी नहीं कर सकता है, तो उनके लिए जो है इस्लाम में छूट दी गई है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ शराइत है जो लवाज़िमात है जो उनको पूरे करने हैं। लेकिन अगर जानबूझ के कोई नमाज को रद्द करता है तो उसको हिसाब उनको देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। मेरे बार कितना इत्तेफाक रखते हैं नूर की बातों से, क्योंकि जाहिर है कि इन दिनों और आज के दौर में मसाजिद की अफादियत बढ़ाने पर गौर किया जाना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को भी इसमें शामिल होने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि हम जुमा के हवाले से जिक्र कर रहे हैं तो और मसाजिद के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, और हमारे जो अभी मेहमान खुसूसी हैं अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज्जत बख्शी है और दीन के हवाले से बहुत नॉलेज है इनके पास, ये हमारी बेहतर इस्लाह इस वक्त कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया समाज को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त में मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि कई सारे ऐसे आलात अभी दुनिया में मौजूद है जिसकी वजह से हमारे नशो नुमा पे, हमारे जहनियत पे उसका एक बुरा असर जो है पड़ रहा है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे जो नौजवान हैं जो अपनी जवानी में उन बुराइयों की लत में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम घर से ही बेहतर कर सकते हैं।
जब हम वालिदैन के फर्ज की बात करते हैं तो वो अपने बच्चों को उस तरह की तरबियत दें जिसमें वो उनको सिखाए कि समाज में ये बुराइयां तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन बुराइयों से आप लोग कैसे बच सकते हैं। यहाँ के जो हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल्स है, जो कॉलेजेस है, अगर वहाँ पे भी जो है इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे दीन के हवाले से लोगों को जो है बताया जा सकता है या सोशल इविल से वो कैसे बच सकते हैं। एक सेमिनार ड्रग एब्यूज पे ऑर्गेनाइज करने से उसका उतना असर नहीं पड़ता है जब तक कि उसकी लगातार पैरवी ना की जाए, यानी कि फॉलो अप्स ना किए जाए। जब तक कि हमारे समाज में लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो अप्स नहीं होंगे, जो वालिदैन हैं वो इतने एक्टिवली नहीं बोलेंगे अपने बच्चों को, तब तक शायद हम इस चीज को नहीं रोक पाएंगे। वालिदैन का बड़ा एक फर्ज बनता है हमारे समाज को बेहतर करने में, जिस तरह से इस वक्त हमारी जो मसाजिद है अपना रोल अदा कर रहे हैं, या जिस तरह से हमारे इमाम साहिबान या जो खतीब हैं अपने खुतबे के जरिए, अपने दर्स के जरिए हमारी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे जो वालिदैन हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी दिन में किस तरह की जो है कारकर्दगी रहती है, शाम को जब वो आते हैं तो वो किस रोज से आते हैं, उनकी जो कैरेक्टर में है कहीं पे कोई तब्दीली तो नहीं आई है, क्या कोई चेंज तो नहीं आई है जो कहीं ना कहीं पे डिफरेंट नजर आ रही है। इन सभी चीजों को मार्क करना जो पेरेंट्स हैं उनकी सभी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो उनको इस तरह की इस्लाह भी दे सकते हैं कि समाज में बुराइयां तो है, लेकिन उन बुराइयों को बचने का एक तरीका ये भी है कि अगर आप मसाजिद का रुख करें, अब वक्त निकाल के 5 मिनट 10 मिनट आप अल्लाह के सामने जाए और नमाज अदा करें। जब ये चीजें लगातार बार बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते जाएंगे, शायद कहीं ना कहीं पे वो वक्त जरूर आएगा जब उस बच्चे के जहन में ये बात जरूर आएगी कि अगर मैं बुराइयों में फंसा हूँ, शायद आने वाले वक्त में इसमें एक बड़ी नुकसान मेरी जिंदगी के लिए है। क्योंकि जवानी का एक ऐसा वक्त रहता है जब इंसान अपने उरूज पर होता है, उसकी सोच परवान चढ़ने लगती है, लेकिन उस परवान चढ़ते वक्त अगर उसकी एक सही इस्लाह की जाए पेरेंट्स के जरिए, शायद वो एक बेहतर इंसान बन सकता है, शायद वो एक बेहतर समाज को तशकील दे सकता है। और जो लोग उसकी एक ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं, जो उसकी लॉबी होती है, शायद वो उस लॉबी में भी एक बेहतर इंसान बनकर उस लॉबी को बचा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि कलेक्टिव अप्रोच हर एक को करने की जरूरत है, चाहे हम वालिदैन की बात करें, चाहे हम अपने टीचर साहिबान की बात करें, चाहे हम इमाम साहिबान की बात करें, चाहे हम अपनी बात करें, अगर हमारे पास किसी चीज की बेहतर नॉलेज है, अगर हम उस बेहतर नॉलेज को अपने समाज में अपने आवाम के सामने रखते हैं, अपने लोगों के सामने रखते हैं, दोस्तों के सामने रखते हैं, कम्युनिटी के सामने रखते हैं, शायद कहीं ना कहीं पे उसका कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। हम एक ही जो है जुमरे को नहीं ले सकते हैं कि ये इमाम साहिबान की जिम्मेदारी है, जो खतीब हजरात है उनकी जिम्मेदारी है, या मस्जिद की कम्युनिटी लेवल पे जिम्मेदारी है, या एक पर्टिकुलर शख्स की जिम्मेदारी। हर एक को अपना फर्ज निभाने की जरूरत है। ठीक है। कुलगाम से फयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फयाज, जानना चाहेंगे कुलगाम में जुम्मे का मुबारक दिन आज है, कुलगाम में किस तरह का जो माहौल है मसाजिद के आसपास देखने को मिलता है और किस तरह लोग कितनी तादाद में मसाजिद का रुख करते हैं? सबा बिल्कुल, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज जुम्मा का दिन है, जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि इसको जो है हफ्ते का सरदार कहा जाता है। और अगर हम जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, इस वक्त भी धूप निकली हुई है और जो मसाजिद का रुख करते हैं, जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, वो काफी उनके चेहरे पे जो है खुशी है, क्योंकि दो रोज पहले जो है हल्की बर्फबारी यहाँ पर जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में हुई है। लेकिन आज जो अगर हम बात करें जुम्मा के हवाले से, तो लोग जो है पुरजोश हैं और जो है इस दिन के हवाले से बात करें तो बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ये दिन आ जाए, क्योंकि बार बार हम ये भी दोहराते हैं कि हदीस में भी है कि एक गरीब के लिए जो है जुम्मा जो है हज के बराबर है, यानी अगर वो जुम्मा नमाज अदा करेगा और वहां पे दुआ मांगेगा तो यकीनन अल्लाह ताला वो दुआ उनकी जो है कबूल फरमाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं, बिलखुसूस जो सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो है सिमनानिया जो जिला कुलगाम में है, और वहां पर जो है हजारों की तादाद में जो लोग हैं आज के दिन जो है नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की 2 जो ज़ियारतें हैं, एक तो
किन्नर जियारत और दूसरी जो है जहां पर वो पैदा हुए थे वो कोयमू की जियारत है। वहां पे भी लोग जो है जुमा के रोज जो है हाजिरी देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो बड़े बड़े कस्बा जात हैं जिनमें अगर हम बात करें यारीपोरा है, डीएशपोरा है, केबीपोरा है, कोंड है, दिवसर है, वहां पर बड़ी बड़ी मसाजिद जो हैं वो वहां पे हैं और उन मसाजिद में जो लोग हैं